Very good morning, students. Welcome to the class of mathematics. And today we will discuss the mathematics of class 8. And as you can see on the screen, today we are going to start chapter number 5, data handling. Right. And in the data handling, this is the part 1. And what are the topics that we are going to discuss are given here. Just like when we see the data handling, so first of all we have to know the meaning of the data handling, right? And what are the content that we will cover in this topic, which is given over here, right? That is, first one is the collection of data, organization of the data, presentation of the data, circle graph or the pie chart, and the chance and probability, right? These are the topics that we will cover into that topic. So it is very interesting topic, and this topic we have done in the class 6 and class 7 also, right? जैसे कि बार ग्राफ जो है वो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, पिक्टोग्राफ जो है वो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, and we have also seen the double bar graph in the class 7, right? And we have also discussed about the chance and the probability and how to represent the data, presentation of data, arithmetic, mean, mode, median. We have learned about the central tendencies also. But I want to inform you that in this class 8, we will not discuss about the mean, mode and median. Basically, we are going to discuss about the pictographs, right? Bar graph, double bar graph, right? And we will also see the pie chart, right? Pie chart हम देखने वाले हैं, pie graph that we will discuss, and ultimately we will see the chance and probability, right? So these are the topics that we gonna cover into this topic, right? So first of all, we come to the introduction part of the data handling. What is the data and how to handle it? What is the meaning of handling? Handling means we collect the data. What is the data? First of all, we will see that the information collected in the different manner or the different objects, right? Just like if we discuss the cricket, right? If we discuss the cricket, so we can see there are various types of the data we can see on the team on the TV screen, and you can see the number of runs, the number of balls, and the number of overs, and the number of wickets taken by. So these are the data about the cricket. When we go to the classroom, so we can take the data about the students, the marks obtained by the student, different marks obtained by the different student in the math subject or the science subject. They conduct, the teachers conduct your test and the examination, and you can see that the examination report or the mark sheet, that is also the one kind of the data, right? So simply we can see that any kind of information that we gather from the surrounding regarding the different objects or the different sports, right, उसको हम generally यहाँ पर data कहते हैं. और if we collect this data, so we have to properly organize and present the data in front of the people, right, to understand betterly and to understand easily. And it will also the matter of time, because यहाँ पर टाइम भी कम लगना चाहिए. किसी भी चीज़ को, डेटा को समझने के लिए हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए. इसलिए हम जनरली किसी भी डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट क्विकली एंड ईजीली, राइट, एंड गेटिंग सम इंटरप्रिटेशन इनटू दैट. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कुछ वहाँ पर रिजल्ट जो हैं वो निकल के यहाँ पर आते हैं, right? So this is the data. Data is one of the information. Just like if you see when the election goes in our country, right? So the members or the committees members, they come to your home and they check how many family members are living in at your home, right? ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना? How many votes is to be done in the election for the different parties, right? So that is also the one kind of the data. Or another kind of data, we can check the number of trees in our surrounding, the number of student in the school, right? These are the simple data. Every day the teacher or the class teacher of your class, they take your attendance, right, and they write down the number of present student and the number of absent students, right, the number of student participating in the competition. There are the different types of the competition can be held in the school, right?
तो यहाँ पर जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसी को हम यहाँ पर डेटा कहते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी वेन एवर वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट मे बी इन टू द प्रॉपर मैनर और इन टू द ऑर्गेनाइज और द ग्रुप फॉर्म, राइट। कोई भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो जनरली हो नहीं सकता है कि वो हमेशा ही सिस्टमेटिक हो। तो जब हम उसको रफली कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है उसमें जनरली कई बार हमको रॉ डेटा जो है वो मिलता है, राइट। और जब हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं यानी सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ द डेटा, उसको हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं या फिर हम बार ग्राफ बनाते हैं। सो दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, राइट। और एंड देन वी कैन प्रेजेंट इन टू द different manner, bar graph, double bar graph, pictograph, that is the presentation of the data. We can also learn the circle graph or the pie chart. This is the new content which come in this class, right. circle graph अभी इसके पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो वो इस बार जो है ये कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। तो आपको आई होप कि डेटा क्या है वो आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यू कैन सी हियर, this is the page of your textbook, the name of the chapter, that is the chapter number 5, data handling. And here are some examples are given, runs made by the batsmen in the last 10 test matches, right. They are only giving you the some example of the data, यानी data किस तरीके के होते हैं। You can see there is a batsman running over the pitch, right, and runs made by the batsman in the last 10 टेस्ट मैचेस, यानी पिछले 10 टेस्ट मैचेस में कितने रन स्कोर किए हैं। नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs, राइट। एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट, राइट। जैसे कि ये सारे एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ द योर फ्रेंड्स, आपने आपके फ्रेंड्स ने कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं, दैट इज ऑल्सो द वन काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गैदर, right, from your friend, right, that is the raw data. And the information collected in all such cases is called the data. यानी यहाँ पर जो 4 एग्जाम्पल हमको दिए हैं A, B, C, D, इसमें जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसी इन्फॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द डेटा। डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द situation that we want to study. For example, a teacher may like to know the average height of the student in the class, right. कोई भी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं सो दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्टिव और अवर पर्पस, यानी हम उसका क्या करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है, उस हिसाब से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, राइट। तो आपके क्लास टीचर चाहते हैं कि वो आपकी हाइट को चेक करें, तो उनको एवरेज हाइट निकालना है, राइट। एंड दैट इज द रीजन दे मेक अ चार्ट ऑफ the name of all the student and they write the height of all the student and they can use the arithmetic mean method and they can get the average height of the student. To find this, she will write the height of all the student in her class and organize the data in the systematic manner and then interpret it accordingly. Interpret करने का मतलब होता है she or he makes some result from the data, right. जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे होंगे, there is on the first page of your textbook, right, that is the page number 69. You can see the pictograph is given, right. There is the pictograph of the car, right. So this is the pictorial representation of the data symbol, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने मंथ में कितना कार जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है या सोल्ड हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जुलाई मंथ में आप देखेंगे, सो 1 कार इज रिप्रेजेंटिंग द 100 कार। यहाँ पर ये जो एक कार का सिंबल है इट इज रिप्रेजेंटिंग द 100 कार। सो इन द जुलाई मंथ, टोटल जुलाई मंथ में अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर 31 डेज होते हैं और उसके अंदर कितना कार प्रोड्यूस हुआ है, देयर इज द 250 कार्स। यू कैन सी दैट देयर इज द 2 कार विच इज कंप्लीट इन द diagram. So that is the 200, 100, 100, that is 200 and this is the half of the car, so it is representing the 50, right. So this denote the 1/2 of the 100, so that is the 250. अगस्त में अगर आप देखेंगे तो 300 कार प्रोड्यूस हुई है एंड सितंबर में अगर आप देखेंगे तो 400 कार प्रोड्यूस हुई है। सो वी कैन राइट हियर 400 बिकॉज 1 कार इज रिप्रेजेंटिंग 100, सो 4 कार रिप्रेजेंटिंग द 4 into 100, so that is the 400, right. So on the basis of they are asking the questions also, in which month where the maximum number of car produced, so you can see 400 car produced in the September month, so that is the maximum production, right. So इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल हैं और इसमें हम जनरली देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे आप पिक्टोग्राफ के थ्रू किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड यू कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट. सो नाउ वी विल मूव
टूवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन, राइट। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, राइट। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इस नेक्स्ट स्लाइड को आप देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया हुआ है। So this is the example of the bar graph, right, and you can see that there is the vertical line and there is the horizontal line which are perpendicular to each other, and this are the vertical columns, these are known as the bar, and they are separated by the equal distance between them, right, and they have the same width, you can see their width is same, right, इनकी width जो है वो चौड़ाई वो same है, and this bar graph representing the information about the academic years, and here the number of student in the class 8, right। तो academic years में कितने number of student जो class 8 में थे, so यहाँ पर आप देखेंगे 0 to 50, right। so this is the 1 centimeter या 1 unit of the vertical line, it is representing the 50 students। तो यहाँ पर हमको यूनिट भी दिख रहा है, राइट, किस तरीके से यूनिट का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे इंक्रीजिंगली यू कैन सी दैट एज द टाइम इंक्रीजेस, as the year increases, number of student increases, you can see the height of the bar is increasing। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, the number of student। तो आप देखेंगे यहाँ पर which is the what is the information given in the bar graph, so this is the information of the number of student of the class 8 in the different academic year, it start from 2003 to 4 to the 2007 to 8। So in which year is the increase in the number of student maximum, देखिए यहाँ पर आप 2007 और 8 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज हुए हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है इन विच ईयर इज द स्टूडेंट, राइट, इन विच ईयर इज द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे 2007 और 8 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 2007 और 8 में है। यहाँ पर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगा, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से ऐसे ईयर्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो यू कैन सी 2003 और 2004 को हम कंपेयर करें, यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। यू कैन सी देयर इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यू। यहाँ पर आप देखेंगे 2004 में कितने स्टूडेंट है 200 एंड 2003 में 100 है, सो देयर इज द गैप ऑफ द 100 स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2004 और 5 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो गिव द स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या पूछा है आपको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द 2005 एंड 6 इज ट्वाइस द 2003 एंड 4, राइट। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो 2003 में कितने स्टूडेंट है 100 है, एंड 2005 में कितने स्टूडेंट है 250। तो अगर हम 100 और 250 का अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द 2005 इज ट्वाइस दैट ऑफ द 2003 एंड, तो ये ट्वाइस नहीं है, जनरली ये ट्वाइस से भी ज़्यादा है, राइट। तो ये स्टूडेंट जो है ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा ये फॉल्स होगा, इट इज़ नॉट द ट्वाइस, दैट इज़ द मोर देन ट्वाइस, राइट। नाउ वी कम टू द डबल बार ग्राफ। यहाँ पर हम डबल बार ग्राफ को भी देखते हैं, इसके नीचे आपको डबल बार ग्राफ दिया हुआ है, ये एक बार ग्राफ हमने देखा, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल बार ग्राफ, राइट। तो हम इसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द डबल बार ग्राफ। यहाँ पर आप देखेंगे एक डबल बार ग्राफ दिया हुआ है आपको। तो डबल बार ग्राफ में आप देखेंगे ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन देयर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, राइट। एंड ऑन द वाई एक्सिस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, राइट। So this is the information about the subject and the marks obtained by the students in the 2 years. This is the performance of the 2 year, that is the 2005 and 6 and 2006 to 7, right. ये 2 ईयर का परफॉर्मेंस एक साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। तो इसको आप ध्यान से देखिए, व्हाट आर द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, राइट। तो डबल बार ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है जो मैंने आपको बता दिया है वही आपको यहाँ पर लिखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है। सो यू कैन सी यहाँ पर परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट जो है मैथ्स में सबसे ज़्यादा हुआ है। आप देखेंगे मैथ्स में पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स जो थे, राइट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट दैट वाज 30 इन द ईयर 2005 एंड इन 2006 यू कैन सी देयर इज द डबल दैट इज अप्रॉक्सीमेट टू द 60, यानी 30 से डायरेक्टली 60 हो गया है। तो आप देखेंगे कि डबल मार्क्स हो गए, तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव मैथमेटिक्स में हुआ है। इन विच सब्जेक्ट द हैज़ द परफॉर्मेंस डिटोरियरेटेड, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस खराब हुआ है, यानी कि दैट इज़ द पुअर
परफॉर्मेंस. सो यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ द इंग्लिश में आप देखेंगे 2005 में अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस कितना था 50 मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. एंड इन द 2007 राइट यहाँ पर 6 और 7 में अगर देखेंगे सो दैट इज़ ओनली 45. तो 50 और 40 के बीच में, तो यहाँ पर ये डिटोरिएट हुआ है. डिटोरिएट का मतलब होता है खराब होना, राइट. तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा है, पुअर है. तो इंग्लिश में यहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस दिख रहा है. इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एज पर, राइट, यानी कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर परफॉर्मेंस ना इंक्रीज हुआ है और ना ही डिटोरिएट हुआ है. सो दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी. यू कैन सी इन बोथ द ईयर परफॉर्मेंस इज सेम, दैट इज 60 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, राइट. तो ये इसका आंसर होगा. सो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके आंसर दे सकते हैं. Now students, after understanding the pictograph and the double bar graph and the bar graph, you have to do this activity. There is some tables are given here. You can see this is the table and draw an appropriate graph. यहाँ पर क्या बोला गया आपको, draw an appropriate graph to represent the given information. This is just for your practice. You can take the graph paper and graph paper जो है last year भी आप use कर चुके हैं. मैंने सिखाया था graph paper कैसे use करना है आपको, क्लास 7 में आपने ये किया है. और यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन मंथ्स के बारे में और यहाँ पर नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड. सपोज देर इज़ अ कंपनी विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग द वॉचेस एंड नंबर ऑफ वॉचेस दे सोल्ड इन द मंथ ऑफ द जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट. तो इसको आप यहाँ पर बार ग्राफ के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन यू कैन टेक द नेम ऑफ द मंथ्स एंड ऑन द वाई एक्सिस यू कैन टेक द नंबर ऑफ द वॉच सोल्ड. यानी वर्टिकल लाइन पे ये नीचे वाला डेटा बता सकते हैं आप और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये मंथ्स आप बता सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखे. नाउ दिस इज द सेकंड टेबल, चिल्ड्रन हु प्रीफर स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी. सभी बच्चों की चॉइस होती है ना, तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है स्कूल चूज़ करते हैं किस स्कूल में उनको जाना है. तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्कूल हैं एंड दे लाइक वॉकिंग एंड साइकिलिंग. यानी कि जब वो स्कूल जाएंगे तो या तो वो वॉकिंग करके जाएंगे या साइकिलिंग से जाएंगे. They have the 2 options. So what they prefer, it depends on them. So this data can be represented by the double bar graph because there is the information of the 2 options are given, walking and cycling, right. तो यहाँ पर आपको डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा और डबल बार ग्राफ से आप इस इन्फॉर्मेशन को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ इन द थर्ड टेबल यू कैन सी दैट, यहाँ पर जो तीसरी जो टेबल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर नीचे की तरफ दिख रही है थर्ड टेबल जो दिख रही है. Now you can see this is the table, percentage wins in ODI by the 8 top cricket teams, है ना. तो आपकी ये 8 टॉप क्रिकेट टीम्स है. दिस इज द नेम ऑफ द टीम, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया, राइट. एंड फ्रॉम द चैंपियन ट्रॉफी टू द वर्ल्ड कप 2006, तो यहाँ से आप देखेंगे 75% ये अलग अलग इनका परसेंटेज दिया हुआ है, राइट. एंड दैट इज द लास्ट 10 ODI इन द 2007, राइट. तो यहाँ पर ये 7 कप दिया हुआ है. तो दिस डेटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ एंड द डबल बार ग्राफ. तो ये आप अपनी एक्टिविटी में कर सकते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो, राइट. नाउ वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा. मैंने बताया था कोई भी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हमको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होता है. प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने का मतलब वी हैव टू मेक इट सिस्टमेटिक, राइट. उस डेटा को हमको सिस्टमेटिक बनाना है, तो वो हम कर सकते हैं. सो यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इन द अनऑर्गेनाइज फॉर्म. अनऑर्गेनाइज फॉर्म यानी कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक रॉ डेटा होता है, राइट. रॉ डेटा का मतलब होता है इट इज़ नॉट सिस्टमेटिकली अरेंज, राइट. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो उसको ईजी बनाने के लिए या उसको क्विकली समझने के लिए हमको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, यानी सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ता है. तो सिस्टमेटिकली अरेंज करने के पास हमारे के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं. जैसे कि आप देखेंगे आपकी बुक में पेज नंबर 72 पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर. ओके, यू कैन सी दिस टेबल, राइट. इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो डेटा हमको दिया था उसको यहाँ पर सिस्टमेटिकली अरेंज किया. जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट्स, डेली मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, राइट. इसमें हमारे पास सब्जेक्ट 4 हैं, आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश. सो इसको अगर हम सिस्टमेटिकली अरेंज करें सो वी कैन मेक इट इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप डेटा. सो दिस इज द टेबुलर डेटा और यहाँ पर हम इसको ग्रुप डेटा कहते हैं. और इस ग्रुप डेटा में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पर अलग क्लासीफाई कर लिया है एंड वी कैन काउंट द टेली मार्क्स. ये टेली मार्क्स वो चीज़ हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द सिम्बॉलिक वे,
राइट, इन द सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे कि आर्ट को पसंद करने वाले 7 स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स को पसंद करने वाले 5 स्टूडेंट है, सो वी कैन मेक द 5 लाइन्स ओवर हियर, राइट, 1 2 3 एंड 4 एंड द 5th लाइन इज ऑलवेज डायगोनल, राइट, 5th लाइन जो होती है वो डायगोनल होती है। साइंस के लिए कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, यू कैन सी देयर इज द 6 लाइन्स ओवर हियर एंड देयर इज द इंग्लिश 4 स्टूडेंट्स ओनली, राइट। सो दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप दिख रहे हैं 7 5 6 एंड 4, राइट, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस इज द सब्जेक्ट, नेम ऑफ द सब्जेक्ट। सो द नंबर ऑफ द टेलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक दैट, राइट, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट। यानी यहाँ पर ये जो टेली मार्क्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्जेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। यानी कि किसी भी टेबुलर फॉर्म में जितने बार हम किसी नंबर को नोट करते हैं दैट इज नोन एज द एंट्री। और इस टेबल को, इस कंप्लीट टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बिकॉज वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास रॉ डेटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी, राइट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट, तो उसको हमने यहाँ पर इक्वली या फिर अकॉर्डिंग टू द डेटा हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है, दिस इज द वे इन विच वी कैन ग्रुप द डेटा, वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा प्रॉपरली, राइट। तो ये एक तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज द डेटा विद द बार ग्राफ, राइट, और बार ग्राफ यहाँ पर हम जनरली देखेंगे, राइट, तो इसको हम यहाँ पर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द अनदर way in which we can represent the data or organize the data, that is the bar with a difference। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, there is a topic bar with a difference, you can see also the textbook page number 74। so here some data which is given in the grouped form, that is into the tabular form। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टेबल दिख रही है, and we can represent that data with the bars। यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसके ऊपर हमने यहाँ पर बार्स बनाए हैं, एंड देयर इज द इंफॉर्मेशन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑन टू द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन टू द वर्टिकल लाइन, राइट। तो यहाँ पर हमने इस डेटा को क्या किया है, प्रिपेयर किया है और उसको यहाँ पर अरेंज करने की कोशिश की है। सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसमें किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, इस डेटा को थोड़ा समझेंगे हम डिटेल में। जैसे कि यहाँ पर क्लास इंटरवल है एंड देयर इज द फ्रीक्वेंसी, right, so this is the data about the marks obtained by the student and the number of students, कितने स्टूडेंट को कितने मार्क मिले, राइट। सो क्लास में देखेंगे आप टोटल कितने स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, एंड दे हैव गॉट द डिफरेंट मार्क्स, राइट। सो देयर आर 2 स्टूडेंट्स, they have got the marks between 0 to 10। how many marks they have got we don't know, but there are number of student which is 2, they have got the mark between 0 to 10, and there are 10 students, they have got between 10 to 20 marks, and 21 they got 20 to 30, and 19 students they have got the 30 to 40 marks, and 7 students they have got the 40 to 60, and the 1 student they have got the 50 to 60 marks, right. So this is the maximum range which is 60 marks, and the minimum range that is the 0 marks, right। तो इसके बीच में यहाँ पर स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं, तो हमने इस डेटा को, टेबुलर डेटा को इस तरीके से यहाँ पर बार की मदद से, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बार जो हैं दे आर जॉइंट बार्स, राइट। तो यहाँ पर बार्स जो हैं इसकी मदद से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेटा को कैसे हमने रिप्रेजेंट किया। सो यू कैन सी दिस इज द बार विच इज द हाइएस्ट इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज द 21 स्टूडेंट, दे हैव गॉट द 20 to 30 मार्क्स, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 1 स्केल, यहाँ पर ये जो 1 यूनिट है दैट इज इक्वल टू द 2 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट स्केल जो है, 1 स्केल दैट इज इक्वल टू द 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने यूनिट लिया हुआ है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, राइट। यहाँ पर जो यूनिट है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, यहाँ पर इक्वल यूनिट्स आपको दिख रही है सारी, और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वी कैन गिव द आंसर ऑल्सो। इसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टेक द अनदर ग्राफ दैट इज नोन एज द हिस्टोग्राम, राइट। इसके पहले जो अभी अपन ने बार देखा था, डायग्राम, बार डायग्राम, वो एक हिस्टोग्राम का टाइप है जिसमें सारे जो बार्स होते हैं वो आपके जॉइंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज ऑल्सो द इंफॉर्मेशन अबाउट द एज इन ईयर्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द टीचर्स,
number of teachers and their ages, right? This data showing the information about the number of ages of the teachers. So some teachers, they have the age between 20 to 25 and 25 to 30, 30 to 35, 30 to 40 and 40 to 45, and the maximum age is 50 years, right? तो 45 से 50 के बीच में जो एज वाले हैं वो 5 टीचर्स हैं, एंड 40 टू 45 में 2 टीचर्स हैं, एंड 35 टू 40 एज ग्रुप में 3 टीचर्स हैं, एंड 30 टू 35 एज ग्रुप में कितने टीचर्स हैं? देयर इज द 6 टीचर्स, राइट? एंड 25 टू 30 में कितने हैं? 5 है, एंड 20 टू 25 में कितने टीचर्स हैं? देयर इज द 4 टीचर्स. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स हैं, राइट? सो हियर द 1 यूनिट इट इज रिप्रेजेंटिंग द 1 टीचर, राइट? एंड हियर यू कैन सी दैट द 20, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 0 पॉइंट है और ये 20 है, तो 0 और 20 डायरेक्टली यहाँ पर 0 के बाद 20 आ गया, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जिगजैग लाइन यूज़ की है जिसको हम जैग्ड लाइन कहते हैं, और ये जैग्ड लाइन जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रोकन लाइन. और ब्रोकन लाइन का मीनिंग क्या होता है? इट हैज़ बिन यूज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही यूज़ की जाती है और इसको कभी भी वर्टिकल लाइन पे यूज़ नहीं किया जाता है, टू इंडिकेट दैट वी आर शोविंग द नंबर बिटवीन 0 टू 20. यानी कि ये जैग्ड लाइन जो है वो 0 टू 20 के बीच में आने वाले जितने भी नंबर है उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? तो ये होता है दैट इज द हिस्टोग्राम. इस बार ग्राफ को क्या कहते हैं हम? हिस्टोग्राम. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन दिस मैनर वेयर द बार्स आर जॉइंट टुगेदर, राइट? तो इनको हम हिस्टोग्राम कहते हैं. तो ये एक तरह का हिस्टोग्राम है. सो हिस्टोग्राम इज ऑल्सो द वन ऑफ द वे in which organize the data and represent the data properly, right? So student, I want to request you that just understand these examples and the organization, collection and the data, and after that you will be able to do the exercise 5.1, right? I hope कि ये सारा जो मैटर हमने यहाँ पर सीखा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, because we have also demonstrated over the screen, right? यहाँ पर स्क्रीन पे सारी चीज़ें आपको डिमॉन्स्ट्रेट की हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया ही है. और उसके बाद आप करेंगे एक्सरसाइज 5.1, बिकॉज 5.1 में इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे. 5.1 का एक रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ. यू कैन सी दिस इज द पेज ऑफ द एक्सरसाइज 5.1 एंड यू हैव देयर आर 5 क्वेश्चंस, राइट? यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं. यू कैन सी हियर देयर आर द 5 क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल दिख रहे हैं आपको, ठीक है? और इन क्वेश्चंस में आपको जनरली या तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा, या तो फिर आपको बार ग्राफ, या तो फिर आपको हिस्टोग्राम, राइट? इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर आपको बनाना है. और आपको डबल बार ग्राफ की ज़रूरत भी पड़ सकती है, वेयर यू कैन रिप्रेजेंट द 2 इंफॉर्मेशन अबाउट द साइमल्टेनियसली अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लास और द ग्रुप्स, राइट? तो यहाँ पर ये 5.1 के क्वेश्चन आप अपने तरफ से जो है वो ट्राई कीजिए और उसको सक्सेसफुली कीजिए. आई होप कि आप ये अच्छे तरीके से कर पाएंगे. ऑल द बेस्ट फॉर द एक्सरसाइज 5.1 एंड यू विल ऑल्सो गेट द PDF ऑफ दैट, राइट? आपको स्कूल एप्लीकेशन में PDF भी अवेलेबल हो जाएगा. सो कीप पेशेंस, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग द मैथमेटिक्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.